Hello, I am Sagar Sen, Assistant Professor at Maharaja Bhoj Government PG College, Dhar, MP. And today we are going to study hexagonal close-pack structure in condensed matter physics. So after all completing this module, student can able to understand the hexagonal close-pack structure. After all, student can understand the coordination number and as well as number of atom per unit cell of SCP structure and C by A ratio. Another thing is very important is atomic packing factor, and in which we will calculate the volume of uh, unit cell of SCP. So these are the basic modules, and these are the basic things we will cover in this chapter. So let us start the hexagonal close-packed structure. So here we can see that this is the hexagonal close-packed structure. In a hexagonal close-packed structure, the unit cell contains three layers of atoms. First one is this, you can see. Second one this, and third one is this. So the top and bottom layer, we can see this. This is the top layer. Another one is bottom layer, and top and bottom layer carry six atoms. We can see that this is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. It's carry top and bottom. In bottom we can see that 1, 2, 3, 4, 5, 6 around this atom. Okay, so the top and bottom layer carry six atom at the corner of a hexagon. Okay, and one of the atom at the center of each hexagon. Means if we taking that this site A, so in this case we can see layer A. In this case we can see that six atom around this particular atom. Okay, another you can see that the six atom um, around the is center atom. So here we can see that top and bottom layer carry six atom at the corner of hexagon and one atom at the center of each hexagon. So and another middle layer which can see here, the middle layer contain three atoms situated between the atom of the top and bottom layer. So we can see that this is the middle layer which is situated between top layer and bottom layer. So this is called as a this layer is known as a middle B layer. Means, and again whenever we are going to see this structure in three dimension, so we can see that another layer will come, this layer will repeat again here, and three atoms will again cover it, and another this six atom will cover uh, to the this three layer, three atoms. And then we can see that this is the layer A, in layer 1, in which the six atoms are at the corner and at the and one is at the center atom. So this layer is known as a site, another one is B site, and another repeating layer A is repeating here in the case of this. So this structure is known by the ABAB site, ABAB sequence. It shows the ABAB sequence, and this is known as a close-packed hexagonal close-packed structure. So this is the 3D view, but we will see now. We are going to see the 2D projection, in which we can see that दिस इज द सिक्स आइटम। छह आइटम आपको दिखाई दे रहे हैं टॉप लेयर के। तो जैसा कि हमने देखा है कि सबसे पहले टॉप लेयर का हम देखें तो टॉप लेयर पर ग्रीन आइटम जो है लाइट ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद में जो है यहाँ बी साइड को हम देखेंगे जो कि मिडिल लेयर है, वहां पर तीन आइटम है जो कि सिचुएटेड है साइड जो आपका ए साइड है उस पर सिचुएटेड है। हम यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ पर आपको ये जो दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, ब्लू कलर में जो है ये मिडिल लेयर है, और उसी के साथ में जो
बॉटम लेयर आपको दिखाई दे रहा है वो रिपीटिंग है ए साइड का, जो आपको अपर लेयर है उसका ही रिपीटिंग जो है वो बॉटम लेयर है। तो यहाँ आपको देख सकते हो बॉटम लेयर जो है ग्रीन, जो आपका डार्क ग्रीन है वो बॉटम लेयर है। तो इस तरह से हम जो 2D प्रोजेक्शन इसका देखते हैं। तो ये जो सिक्वेंस है ये आपको एबी एबी टाइप का जो है सिक्वेंस यहाँ पे दिखाई देता है, और इसको हम बोलते हैं एबी एबी हेक्सागोनल क्लॉस्पेच स्ट्रक्चर। तो ये आपको जो है एससीपी स्ट्रक्चर जो है उसका बेसिक डायग्राम क्या है वो हमने यहाँ देखा। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछली क्लास में कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज नियरेस्ट नेबर एटम अराउंड एन एटम, मींस अगर एक किसी एटम के पास में कितने नियरेस्ट नेबर एटम है वही उसका क्या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो जैसा कि हमने पहले वाले पिक्चर में देखा है, ये हमने पूरा इसको समझा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो दो एटम है इनका बीच का डिस्टेंस कितना होता है, एच जो है वो एज लेंथ इसको हम ए बोलते हैं, और सी जो है वो हाइट है। मतलब ये आपका सी जो है हाइट होता है और ए जो है दो एटम के बीच का डिस्टेंस होता है। तो अब यहाँ अगर हम देखें इसको, इस व्यू से देखें हम, तो ये सेंटर एटम अगर हम लेते हैं, इसको हमने इस तरह से लिया है कि ये आपकी लेयर ए है, फिर उसके बाद में बी लेयर है, ठीक है, फिर उसके बाद में जो है या तो हम इसको लेयर को लिया है, फिर नीचे एक बी लेयर लिया है, ये मान लीजिए बी लेयर, और इसके ऊपर भी जो ए साइड है इसके ऊपर भी एक लेयर है जो कि 3 एटम्स का एक लेयर होगा यहाँ पर, तो उसको हमने यहाँ लिया है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि each atom connect with 3 atoms in the layer above its plane, means each atom connect with 3 atom in the layer above its plane। तो यहाँ अगर हम ये देखें, ये वाला अगर इसको हम रेफरेंस मानते हैं और सेंटर एटम को हम रेफरेंस मानते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 एटम जो है इसके अबाव है, इस प्लेन के अबाव है, और 3 एटम इसके बिलो है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ देखते हैं इसके नियरेस्ट नेबर एटम्स कितने होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नियरेस्ट नेबर एटम जो है वो बॉटम लेयर में हम देखें तो ये 3 नियरेस्ट नेबर होंगे। जैसा कि अगर हम इस एटम को लेते हैं, इसके नियरेस्ट नेबर कौन कौन से होंगे, ये एक ये वाला एटम हो गया, एक दो और ये 3। सिमिलरली ये आपका सेंटर एटम है और इसके नियरेस्ट नेबर एटम कौन से होंगे, एक दो और ये 3, और साथ में इसके सराउंडेड जितने भी एटम्स है वो भी होंगे। तो 3 तो ये हो गए, तो उसके बाद में आपके पास 6 एटम ये हो गए, तो 6 3 9 हुए। और इसके अपर लेयर पे भी अगर हम देखेंगे, इसके ऊपर जो लेयर होगी, इससे ऊपर जो लेयर है वो ये वाली है 3 एटम्स की। तो ये जो 3 एटम्स की लेयर है, तो 3 6 3 9 तो यहाँ हुए, और इसके साथ में अपर लेयर में भी 3 एटम है, तो यहाँ टोटल एटम कितने हो जाएंगे, 12 एटम हो जाएंगे। मतलब इस एटम की जो नियरेस्ट नेबर एटम कितने होंगे, वो 12 एटम होंगे, ठीक है। जो कि 6 तो इसके खुद के प्लेन के ही होंगे, 6 एटम इन इट्स ऑन प्लेन and 3 atom above and 3 atom below. So therefore the coordination number of SCP structure is 12. तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमने देखा। अब उसके बाद में हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर, टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये हमने 3D व्यू देखा है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो अब ये यहाँ पर अगर एक एटम हम इसकी बात करें, तो ये एटम जो है वो 6 एटम से घिरा हुआ है। इसका मतलब जो है अगर इस कॉर्नर की मैं बात करूं तो इस पर कितना एक एटम को मिलेगा, 1/6 एटम जो है यहाँ पर इस कॉर्नर पर इसको मिलेगा यहाँ पर। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 6 कॉर्नर है, ठीक है, 6 कॉर्नर पर 1/6 जो है वो सभी को मिलेगा और सभी का हिस्सा होगा। और इसी के साथ में अगर हम सेंटर एटम देखेंगे, तो ये वाला एटम है सेंटर एटम। तो जो कि सेंटर एटम में हम देखें तो ये सेंटर एटम किस तरह से है, ये इस तरह से है कि एक एटम आधा एटम इस तरह से है और आधा एटम बॉटम में है। तो इस तरह से हम बात करें तो सेंटर एटम जो है इसका आधा हिस्सा जो है अगली वाली लेयर को पार्टिसिपेट कर रहा है और आधा हिस्सा जो है इस लेयर को कर रहा है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो इस लेयर के लिए जो है आधा हिस्सा होगा। सिमिलरली हम देखें तो यहाँ 3 एटम जो है वो एज इट इज आएंगे, तो 3 एटम तो ये हो गए। और सिमिलरली ये वाली जो ए लेयर है और ये बी लेयर होती है और इसके साथ में ये भी ए लेयर है, तो ए लेयर जस्ट सिमेट्रिक है इस लेयर के अपर लेयर के। तो यहाँ पर जितने एटम्स नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होंगे, वहां पर भी सिमिलरली यहाँ पर बॉटम में भी उतने ही नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं अगर कॉर्नर की हम बात करें, कॉर्नर पर तो यहाँ टोटल 6 कॉर्नर हुए और नीचे बॉटम में भी देखें तो 6 कॉर्नर है, तो टोटल मिला के 12 कॉर्नर है। और 12 कॉर्नर पे कितना शेयर हो रहा है, 1/6 शेयर हो रहा है। तो 12 इंटू 1/6 हमने ये किया, और यहाँ आपको कितना मिल जाएगा टोटल मिला के, कॉर्नर पर जो आपको एटम मिल रहा है उनका
नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो है वो 2 होगा। साथ में अगर हम बात करें फेसेस की, तो फेसेस मतलब ये हो गया, एक तो दो फेस है यहाँ पर, एक ये फेस भी हो गया और ये फेस भी हो गया। तो अगर अपर लेयर पे हम देखें तो इस वाले हिस्से पे हम देखें तो दो, एक फेस एटम ये है और बॉटम में भी एक फेस एटम है। तो इसी के साथ में हम बात करें तो ये आधा आधा हिस्सा दोनों पे शेयर हो रहा है, तो 2 इंटू 1/2 करेंगे हम, जो कि एक ये वाला एटम और एक बॉटम में होगा इस तरह से। तो ये 2 इंटू 1/2 जो है वो कितना हो जाएगा, फेस पर जो एटम्स है उसका जो शेयरिंग है वो 1 हो जाएगा। वही हम बात करें तीन जो है सेंटर एटम है, ये आपने जो देखे तीन जो है सेंटर एटम है, जो कि हमने यहाँ पे भी देखे थे तीन सेंटर एटम। और ये तीन सेंटर एटम जो है वो एज इट इज आएंगे। तो इस तरह से, क्योंकि फुली कंट्रीब्यूशन है उसका, तो किसी से शेयर नहीं हो रहे हैं वो, तो इस तरह से अगर हम बात करेंगे तो टोटल जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल है वो कितना हो जाएंगे, एससीपी स्ट्रक्चर के लिए 6 हो जाएंगे। तो यहाँ हम बात करें, ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जहां पर टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो है एससीपी स्ट्रक्चर के लिए 6 होते हैं। और वहीं हम बात करें सिंपल क्यूबिक के लिए तो 1 होता है, और बीसीसी के लिए 2, और उसी के साथ में एफसीसी के लिए 4। तो टोटल नंबर ऑफ एटम जो है एससीपी स्ट्रक्चर के लिए कितना होता है, 6 होता है। वो सी बाई ए रेशियो निकालेंगे हेक्सागोनल क्लॉज पैक स्ट्रक्चर के लिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो सी है, वो सी जो है ये सी जो है वो हाइट है और यूनिट सेल का, और इसके साथ में ए जो है वो एज कहलाती है। तो वो किस तरह से हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये हम देख सकते हैं, ये ए स्ट्रक्चर है, ए लेयर है, और ये बी लेयर है। इसके बाद में जो है इसके ऊपर जो है वो वापस ए लेयर आएगा। तो ये एक तरह से हमने ऑलरेडी देखा है कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है वो ए बी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर ए लेयर जो है अगर हम देखें तो इसको हम बॉटम लेयर बोलते हैं, ये वाली मिडिल लेयर है, उसके ऊपर जो है एक और जो है वो अपर लेयर होती है। तो यहाँ अगर हम बात करें, अगर एक अपर लेयर भी है जिसमें 6 एटम्स होते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है अपर लेयर से जो बॉटम लेयर है उसका जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, सी होता है। बट यहाँ हमारे पास जो है वो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर से अगर हम बॉटम लेयर की बात करेंगे तो ये जो हाइट है ये कितना हो जाएगा, C/2 हो जाएगा, क्योंकि ये मिडिल में है। अब यहाँ हम बात करेंगे कि ये जो दो एटम है, इन दो एटम के बीच का जो लेंथ है उसे हम H कहते हैं, वो कितनी होती है, A होती है, जो कि किसकी इक्विवेलेंट होती है, 2R के इक्वल। क्योंकि यहाँ अगर हम बात करें तो ये रेडियस R हुआ, और पांचवें एटम में भी अगर हम देखें तो ये रेडियस R होता है। तो टोटल जो A जो है वो किसके इक्वल होता है, A जो है वो 2R के इक्वल होता है। ठीक है, A जो है वो 2R के इक्वल होता है। और साथ में हमने देखा यहाँ पर कि मिडिल लेयर से जो बॉटम लेयर है उनके बीच का जो डिस्टेंस है या उसके बीच की जो हाइट है वो कितनी होती है, C/2 होती है। तो हमें यहाँ क्या करना है, C/A का रेशियो निकालना है। मतलब ये जो C है और ये जो A है, इनके बीच का हमें रेशियो निकालना है। तो हम इस फिगर में देखेंगे, जो आप ये फिगर देख सकते हो, इस फिगर में हम देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये बॉटम लेयर है, और बॉटम लेयर में टोटल मिला के 6 इक्विटोरियल एंगल ट्राइंगल है यहाँ पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक ट्राइंगल ये है। सिमिलरली हमारे पास 6 ट्राइंगल होते हैं बॉटम लेयर में। तो यहाँ हम देख सकते हैं सबसे पहले कि ये जो यहाँ इसके अपर लेयर, जो इससे ऊपर वाली जो लेयर है, जो मिडिल लेयर का है, तो उसमें 3 एटम्स होते हैं, 3 एटम्स होते हैं। तो और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, Z। ये सॉरी, ये जो पॉइंट है इसको हम Z बोलते हैं, और ये जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, A होता है, क्योंकि यहाँ पर भी एक एटम है और ये एटम है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस A होता है। और साथ में यहाँ पर भी ये जो डिस्टेंस है ए बी के बीच का डिस्टेंस है वो भी कितना है, A है, A है, हम देख सकते हैं यहाँ पर ये डिस्टेंस A है। मतलब ये A से B के बीच डिस्टेंस, हम इसको और अच्छी तरह से देखने के लिए हम कहाँ पर इस फिगर को देख सकते हैं। इस फिगर को देखने पर हमें पता चलता है, इसे हम इरेज कर देते हैं, इससे ज्यादा अच्छे से हम इसे समझ पाएंगे इस फिगर को। तो अब यहाँ देख सकते हैं हम, ये तीसरा आइटम है जो कि अपर लेयर पे। हाँ, तो अब यहाँ देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस है ये Z है, तो ये AZ जो है यहाँ पर ये डिस्टेंस होगी, इनके बीच का जो लेंथ है वो A हो गया। अब जो हम यहाँ बात करें AB, AB ये है आपके पास AB,
इसके बीच के जो डिस्टेंस है वो भी a होगी, एज कहलाती है वो। और साथ में अगर हम बात करें कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो कट जो कर रहा है इसे इस प्लेन से, ये कितना होगा, ए वाई होता है, ये ए वाई होता है। अब अगर मैं इक्विटल एंगल जो है उसका, इक्विटल जो ट्राइंगल है उसका एंगल देखो तो 60 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर जब ये इसको हाफ हाफ कट कर रहा है तो इतना होगा, इसका एंगल 30 डिग्री होगा। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे ए बी वाई, ए बी वाई में हम cos 30 कैलकुलेट करेंगे, 30 क्योंकि यहाँ 30 डिग्री फोकल कट कर रहा है, तो ए बी वाई मतलब ये वाला जो है वाई प्लेन हो गया। तो ए बी वाई, ये वाला जो ए बी वाई हम देख सकते हैं, ये वाला, इस ए बी वाई में हम देखते हैं, ट्राइंगल में देखते हैं, तो कोस जो है हम देखेंगे तो कोस क्या होता है, बेस इंटू हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे देखेंगे कौन सा है, बेस आई ए वाई होगा, हाइपोटेन्यूज ए बी होगा। इसके हिसाब से हम जो है cos 30 कैलकुलेट करेंगे। तो cos 30 यहाँ वैल्यू रखेंगे हम 3/2, और ए वाई की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना होगा, a√3/2, क्योंकि ए बी कितना है, ए बी ए के इक्विवेलेंट है, ठीक है, एज लेंथ है इसका। अब हम ट्राइंगल ए एक्स जेड देखते हैं। ट्राइंगल ए एक्स जेड मतलब ए एक्स, ये वाला जो ट्राइंगल है ए एक्स जेड, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ मैं इरेज करता हूँ फिर, क्योंकि काफी मिक्सअप हो रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं ट्राइंगल ए एक्स जेड। तो एक्स जेड ये ट्राइंगल होगा, ये एक्स जेड ट्राइंगल है। अब इस एक्स जेड ट्राइंगल में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स जो है वो 2 रेशियो और एक्स वाई जो है वो 1 रेशियो में है। तो इसको हम अगर एक्स और ए वाई के बीच में रिलेशन निकालते हैं तो वो कितना होगा, 2/3 के रेशियो में होगा। तो 2/3 ए वाई हो जाएगा एक्स की वैल्यू। ए वाई ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, √3/2, हमने यहाँ इसको पुट अप किया। और फाइनली जो हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं वो कितनी आती है, √3, a/√3। अब इसी में हम जो है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। जब हम पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ यूज करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि जो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो है वो आपका क्या कर्ण जो है या उसे हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस जो है बेस का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज जो है वो एजेड होगा, ठीक है, और एजेड जो कि ये है, और इसके साथ में आप परपेंडिकुलर और एक्स हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस जो है वो एक्स जेड हो जाता है। तो इसका होल स्क्वायर हमने ले लिया सभी का पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ए जेड जो है वो ए है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। एक्स जो है हम यहाँ से निकाल चुके हैं, एक्स की वैल्यू जो है a/√3 है, तो इसका होल स्क्वायर लेंगे तो a²/3 हो जाएगा। वहीं जेड एक्स की हम बात करें तो जेड एक्स जो है वो क्या होगा, जेड एक्स जो है वो सी, जेड एक्स मतलब ये वाला जो हाइट, ये वाला जो हाइट है जेड एक्स कहलाती है, जो कि c/2 हो जाती है। ये वाली जो हाइट हम बोल रहे हैं ये c/2 कहलाती है। तो c/2 जो है वो यहाँ हम रखेंगे। तो ये फाइनली हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद में जो c/a का रेशियो हमारे पास आएगा वो क्या होता है, 8/√3। तो इस तरह से √8/3, तो ये हमारे पास c/a का रेशियो आता है। तो इसे हम c/a रेशियो कहते हैं। अब आगे हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो जब हमें यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना है तो यूनिट सेल का वॉल्यूम किस तरह से निकालेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो है वो क्या होगा, एरिया ऑफ बेस और इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एरिया ऑफ बेस किस तरह से निकाला जाएगा। ये फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल के लिए, और एरिया ऑफ बेस निकालना है हमें यहाँ पर। तो एरिया ऑफ बेस जो है अगर हम बात करें तो बेस कौन सा होगा, ये बेस हुआ ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ बेस मींस ये हुआ AOB, ये एरिया ऑफ बेस होगा ट्राइंगल का। इसी तरह से 6 हमारे पास ट्राइंगल है, तो हम जब टोटल एरिया निकालेंगे तो 6 इंटू ट्राइंगल, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो हम कर देंगे। तो इसी तरह से हम बात करेंगे तो 1/2, तो यहाँ हाइट इंटू बेस होता है इसका फॉर्मूला, ट्राइंगल का फॉर्मूला। तो यहाँ हम देख सकते हैं हाइट की हम बात करें और बेस की बात करें तो हम ऑलरेडी ए वाई हम ऑलरेडी स्लाइड में निकाल चुके हैं, प्रीवियस स्लाइड में। तो ए वाई हमारे पास a√3/2 था, और ओबी जो है, ओबी हम बात करेंगे तो ओबी कितना होगा, ओबी जो है वो ए के इक्विवेलेंट होता है। तो इस तरह से हम देखें तो यहाँ एरिया ऑफ बेस निकल के आएगा, और टोटल जो है हमारे पास 6 ट्राइंगल है यहाँ पर, तो 6 ट्राइंगल का ये एरिया हो जाएगा
अभी यहाँ पर सिंगल एक जो ट्राइंगल है उसका एरिया हमने निकाला है, और उसी तरह से हम 6 जो आपका बॉटम लेयर में जो 6 ट्राइंगल है इक्विटोरियल ट्राइंगल जो है उनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ बेस आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमें निकालना है, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो हाइट हम देख सकते हैं यहाँ पर हाइट जो है वो c होती है, हमने देखा था ऑलरेडी। तो हाइट जो है वो क्या होगी, अपर लेयर से जो बॉटम लेयर है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, c कहलाती है। तो एरिया ऑफ बेस में c का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकल के आ जाएगा। अब हम फाइनली जो है इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो की है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन हम निकालेंगे, तो पैकिंग फ्रैक्शन हम ऑलरेडी लास्ट जो क्लास थी उसमें हम देख चुके हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो ये बताता है आपको कि हाउ मच एटम ऑक्यूपाई द स्पेस इन यूनिट सेल। तो कितना स्पेस को ऑक्यूपाइड करता है और कितना एम्प्टी बचता है। तो ये चीज जो है वो आपका पैकिंग फ्रैक्शन होता है। अब इसमें की पॉइंट अगर हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ऑलरेडी हमने देखा है कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो है वो कितनी होती है, 2r इक्वल टू a होता है। लेटिस पैरामीटर इसी के इक्वल a इक्वल टू 2r हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो है वो 6 होते हैं, ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं किस तरह से निकालते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम इन द यूनिट सेल, तो अब हम देखें कि टोटल एटम यहाँ पे कितने होते हैं, पर यूनिट सेल में 6 होते हैं। तो 6 एटम जो है उनका हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो स्फेरिकल इसको लेकर 4/3 पाई आर क्यूब जो है इसका वॉल्यूम हो जाएगा और 6 एटम का। और यहाँ हम देख सकते हैं r इक्वल टू कितना है, 2r इक्वल टू a होता है। 2r इक्वल टू a होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं r की जगह हम क्या लिख देंगे, a/2। 2r इक्वल टू a होता है, r की जगह जब हम a/2 यहाँ फिलअप करेंगे, यहाँ पुट अप करेंगे, तो ये फाइनली जो है वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल जो है वो पाई a क्यूब आ जाता है। तो ये पाई क्यूब जो है वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल है, ऑल एटम 6 एटम का वॉल्यूम हो गया ये यूनिट सेल के। और इसके साथ में अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल प्रीवियस स्लाइड में हम निकाल चुके हैं, क्योंकि ये था वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और उसके बाद में कोऑर्डिनेशन नंबर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक एटम जो है नियरेस्ट नेबर एटम जो है कितने होते हैं एक एटम के पास में, तो वो 12 होते हैं यहाँ पर। तो साथ में c/a रेशियो भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब यहाँ पैकिंग फैक्टर हमें निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मतलब कि वॉल्यूम एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में जो है वो कितने वॉल्यूम होते हैं, सॉरी एक पर्टिकुलर यूनिट सेल के वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ एटम जो है वो अपना स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, वही जो है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। और एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी, तो हम स्मॉल बी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पाई a क्यूब होता है, ठीक है। वही हम वॉल्यूम कैपिटल बी की बात करें तो ये 3/2 a स्क्वायर रूट 3 c होगा। तो इसको यहाँ पुट अप किया, और फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं a/c जो है वो आ रहा है, a/c मीन्स हम यहाँ ऑलरेडी c/a निकाल चुके हैं रूट 8/3। तो यहाँ जब a/c की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना रूट 3/8, और इसको फिर हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने पर ये जो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन है वो कितना होता है, 74% होता है। ये एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन जो है सिमिलरली होता है जिस तरह से हमने एफसी स्ट्रक्चर में देखा था, वहां पे भी एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है एससीपी स्ट्रक्चर के लिए 74% होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी एससीपी एफसीसी के लिए जैसे 74% होता है, उसी तरह से एचसीपी के लिए भी 74% होता है। तो यहाँ पर ये एससीपी स्ट्रक्चर के लिए हमने c/a रेशियो निकाला, साथ में वॉल्यूम निकाला, और कोऑर्डिनेशन नंबर और नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, और ये सब चीजें हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है। और फाइनली हमने इसका एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन भी कैलकुलेट किया है। तो आपको फर्दर रीडिंग के लिए और जो बुक सजेस्टेड है वो ये है, आप देख सकते हैं। अब हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले जो है क्वेश्चन है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन एससीपी स्ट्रक्चर। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन एससीपी स्ट्रक्चर इज 6। ऑलरेडी हम देख चुके हैं किस तरह से 12 कॉर्नर्स पर जो है वो 1/6 हिस्सा होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कॉर्नर्स पे जो नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे वो कितने होंगे, 2। साथ में सेंटर में जो है वो 3 एटम्स होते हैं, तो 3 और 2 ये यहाँ पर 5 होंगे, और जो कि लेयर बी पे होते हैं। और साथ में अगर हम बात करें एक एटम जो है वो शेयर होता है, जो हम कॉर्नर पे जो हेक्सागोन देखते हैं उसके एक सेंटर में एक एटम होता है जो कि आधा हिस्सा शेयर करता है।
और इसी के साथ में जो है बिलो से जो लेयर जो है बॉटम लेयर जो है उसमें भी आधा हिस्सा होता है सेंटर पे। तो इसी के साथ में टोटल एक नंबर ऑफ एटम जो है वो कितना हो जाएंगे, वो एक वहां पर शेयर होता है। तो इस तरह से जो है वो 6 नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होते हैं। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन एससीपी इज 6। क्वेश्चन जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एससीपी एंड एफसीसी लैटिस रिस्पेक्टिवली आर। तो देखिए एससीपी और एफसीसी लैटिस के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं एससीपी के लिए भी और एफसीसी के लिए भी। तो 12 जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है एससीपी के लिए और एफसीसी दोनों के लिए। तो ये हुआ प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर। अब हम देखते हैं द वॉइड फ्रैक्शन इज रेशियो ऑफ अनफिल्ड वॉल्यूम ऑफ एटम ऑफ ए स्ट्रक्चर फॉर आइडियल मेटेलिक एफसीसी स्ट्रक्चर इट इज। अगर हम एससीपी के लिए भी बोल सकते हैं या एफसीसी के लिए भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन वो 0.74 होता है। तो वॉइड फ्रैक्शन अगर हमें निकालना है तो वो किस तरह से निकालते हैं 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन। मींस वॉइड मतलब कितनी एम्प्टी स्पेस उसमें है, वो क्या कहलाता है, वॉइड फ्रैक्शन कहलाता है। तो 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन हम निकालेंगे तो एटॉमिक फ्रैक्शन जो है वो एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए 0.74 आता है। उसी तरह से एससीपी के लिए भी देखेंगे तो वो भी 0.74 होता है पैकिंग फ्रैक्शन। और वॉइड फ्रैक्शन 1 माइनस 0.74 करेंगे तो यहाँ पर 0.26 जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड एक्सियल रेशियो फॉर मेटेलिक एससीपी इज 2 into 2 root 2 by 3. It is the ratio of, तो ये रेशियो किसका है, एटॉमिक रेडियस ऑफ हेक्सागोन एज लेंथ, हेक्सागोनल हाइट लेंथ टू एटॉमिक रेडियस टू हेक्सागन हाइट, नन ऑफ द मेंशन। तो यहाँ पर ये जो है इनमें से तीनों में से कोई भी नहीं होता है। ये रेशियो होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ हेक्सागन यूनिट to its edge length. It is called as axial ratio which is expressed by c by a, जो कि अंडर रूट 8/3 होता है। तो अब हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ एससीपी स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो है वो एससीपी स्ट्रक्चर के लिए हमने फाइंड आउट किया था, वो होता है 0.74। और वहीं हम बात करें एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए तो एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए भी एटॉमिक फैक्टर कितना होता है 0.74। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर एससीपी और एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए सेम होता है 0.74। अब हम बात करते हैं आगे, फाइनली हम हमारे जो टॉक है उसको कंक्लूड करते हैं। और आफ्टर ऑल कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड this following points, and by this point we can understand the coordination number which is giving the information about the number of nearest neighbor atoms. So nearest neighbor atoms in case of SCP structure it is 12, and another important parameter number of atom per unit cell in case of SCP structure it is 6. If I am comparing with the simple cubic it is 1, BCC structure it is 2, and FCC structure it is 4. But in case of SCP structure the number of atom per unit cell is 6. And another important parameter which is C by A ratio. C by A ratio for SCP structure it is 8/3, under root 8/3, and the volume of unit cell is given by this particular expression. And another important parameter is packing fraction. So packing fraction in this case it is 74%. That means that higher the packing fraction that means the close packed structure, and lower the packing fraction that means it is loosely structured. So close packing fraction in case of SCP structure is 74%. That means it is close packed structure. That's why SCP structure is close packed structure, and it is equivalent to FCC structure. So SCP in case of SCP structure and FCC structure, in both cases the packing fraction is 74%. So this is the this point shows the complete details of SCP structure. So finally, thank you very much to all.